Hello everyone, welcome to another episode of Partner Connect by Advisor Coach. Today in Partner Connect, we have Mr. Upinder Jain from Finoptic Capital Services, Hyderabad. Welcome Upinder to Partner Connect by Advisor Coach. Good morning, Suren, and good morning to all the viewers. Thank you, Suren, for inviting me. It's Our pleasure. really an honor to speak to you. Our Thank you pleasure. so much, and thank you to the team of Advisor Coach for this. Always our pleasure. So let's begin with understanding key. Upinder, how did you decide to become a mutual fund distributor and start this company, Finoptic Capital Services? What prompted you to start that? This is very interesting story, Suren. When I completed my MBA, I got an opportunity to work in ICICI Bank. So I did work there for 2 years, and during that stint, I really realized it. One thing which I realized is people have incomes. People are generating money, but the whole problem is their financial structures are not really in sync or in line how they want the future to be. Right. So one important part, yes, in our education system, the financial literacy is not the way it has to be, which I would say more practical to a common man. So that was one thing which I felt is missing out. And second, during my stint with the bank, I learned a lot. And I also learned that, as I mentioned, people have incomes, but they need a financial structure. And this prompted me to get into that. In fact, with my own investments as well, because I was also earning. So I was like, how do I put that money to use where my money works for me? Sure. Instead of, yes, there are two stages in life. One is I working for money, then my money working for me. Sure. Right. So I always tell there are only two ways of making money. One, you work, you do a job, or you do you do some business, and that's your active income. One is your money making money. So this prompted me to get into this business and start Finoptic Capital. And yes, the third way of money is you have some rich inheritance, which most of us. So were you lucky from that aspect? Oh yes, I was definitely lucky, but this also helped me, curate certain financial structures where my investors, my clients can create that legacy for their future, for when I say future, for their future generations. So yes, this was the stepping stone for Finoptic Capital Services. Wonderful. So this was in which year, Upinder? किस साल में start किया? हमने सर ये 2007 में एक्चुअली इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ जैन एसोसिएट स्टार्ट किया था. अच्छा. बट यस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज we were expanding our wings abroad, we thought of renaming it to a more global name rather than Jain and Associates being more family oriented and रिलीजन वाइज भी थोड़ा सा कई लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे कई कंट्रीज में. So we thought, why not make it more universal name? So then we came up with this idea of Finoptic Capital Services. So Finoptic Finoptic means fin, finance, optic, eyes. So financial eyes. So this is the actual name of the meaning of Finoptic Capital Services. So this we rebranded in the year 2016-17. 2016-17, okay. Yeah, okay. but I'm into this business from 2007 now. 2007 onwards. Before that 2 years, I worked in the corporate ICICI Bank. So I was managing the wealth of couple of clients there. Wonderful. So headquartered in Hyderabad, but you have some, like you mentioned, abroad. So where all do you have your presence? We are headquartered out of Hyderabad, yes, India. We do have branches in Malaysia, Africa, and now UAE as well. Excellent. So you have clients across all these places as well? Yes, we do have clients all across the globe. Right now, we are operating more than, if PAN-wise we talk about, it's around 700 plus clients. But family-wise, if I say, it is approximately around 250 odd families. Sure. So because, in one family, you have 4 PAN numbers and all that. So of course. That way. Sure. Yes. So if I were to ask you in one word, how has your journey been leaving the corporate job and starting as a mutual fund distributor? What would you say? क्या बोलेंगे आप? Definitely a roller coaster ride. Thrill, anxiety, but yes, बहुत मजा आता है when you meet different people,
people from different walks of life, they teach you a lot. आप हर एक आदमी के पास जिसके साथ बैठते हैं, जिसके साथ बात करते हैं, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, तो वो आपको हर चीज कुछ ना कुछ एक नया सिखाता है। तो मैं आज भी कभी किसी क्लाइंट के साथ बैठता हूँ तो मुझे मुझे ऐसा लगता है मेरे को कुछ वो नया सिखा रहा है। सो मेरी जो हंगर ऑफ लर्निंग है वो हमेशा रहती है। सो इट्स लाइक दैट किड हु वांट्स टू नो एवरीथिंग, not necessarily he will go with everything, but then that hunger for knowledge, that hunger to learn more, and this is one industry जो मुझे लगता है हमारी एक बहुत नोबल इंडस्ट्री है फाइनेंस की, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप हर आदमी से मिलते हैं, एक ठेले वाले से लेके एक सीईओ से मिलते हैं। हर एक का अपना एक थॉट प्रोसेस है, हर एक का अपना एक जर्नी है लाइफ की, हर एक की अपने गोल्स हैं, हर एक के अपने एक एस्पिरेशंस हैं। तो जब आप उनसे जुड़ते हो और वो खुशी के पल आते हैं कि उनका गोल अचीव हुआ है और वो खुश हैं, तो उसमें जो आपको खुशी मिलती है, जो किक मिलती है, I'll borrow this word from Salman Khan's picture, जो किक मिलती है, that is something which is really amazing. Wonderful. और आपको एक अंदर से खुशी होती है कि आपने किसी की जिंदगी ट्रांसफॉर्म की है। सो इससे नोबल बिजनेस क्या होगा सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लोग खुली आंखों से सपने देखते हैं, मतलब एक कहावत है ना, लोग खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि जो लोग खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, हम इस इंडस्ट्री में रह के उनके वो सपने पूरे कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। बहुत मतलब कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ये बात रखी आगे। वेरी वेरी नाइस। सो उपिंदर, आपने क्या इंडक्शन प्रोसेसेस या रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेसेस आपने सेट किए हैं एट योर कंपनी फिनॉप्टिक, एंड म्यूचुअल फंड की एलोकेशन तकरीबन तकरीबन आप कितनी रखते हैं क्लाइंट के पोर्टफोलियो में? एंड म्यूचुअल फंड आपके लिए, व्हाई डू यू बिलीव दैट म्यूचुअल फंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन अ क्लाइंट्स एसेट एलोकेशन? सर आई विल गो इन द रिवर्स ऑर्डर। सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड क्यों? सर ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप पैसे देके एंड एट अ मीगर फीस आपके लिए प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं? इससे अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं, राइट? एंड इंडस्ट्री के बेस्ट प्रोफेशनल्स आपके लिए काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड्स में सबसे बड़ी बात, तीन चीजें जो मतलब हर आदमी को मिलती है। एक है डाइवर्सिफिकेशन उसके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, दूसरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो लोग आज बैठ के आपका पैसा संभाल रहे हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं, उन्होंने इस चीज की पढ़ाई करी है, महारत हासिल करी है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो है लिक्विडिटी। ये एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें आपको लिक्विडिटी बहुत आराम से मिलती है। अगर आप डेट वगैरह में डालेंगे तो एक दिन में लिक्विडिटी है, इक्विटी के प्रोडक्ट्स में डालेंगे तो ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज, मतलब तीसरे दिन आपके पास लिक्विडिटी है। ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं है। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, ग्रोथ आती है, लिक्विडिटी नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है भी, अगर आप उसको बैंक में या किसी एनबीएफसी में मॉर्टगेज करके पैसा उठाना भी चाहते हैं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मिनिमम 10-15 डेज, इजीली, आराम से, राइट? अगर आप सोना खरीदते हैं, कोई गोल्ड खरीदते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसमें भी आपको आसानी से नहीं। आप पहले तो हमारे हमारे भारतीय कल्चर में सोना बेचने जाना अपने आप में एक मुश्किल है। एक माइंडसेट हमारा ये बना हुआ है कि सोना Yes. बेचने क्यों जाए, और सोना Yes. बेचने जा रहे हैं तो यार हमारी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो हाँ, मैच्योर हुई है मार्केट। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल सही है, जहां पर आप अपना छोटे से छोटा निवेश, 500 रुपए, अभी तो 250 से शुरू हो गया है, 500 रुपए से लेके आप अपना पैसा जो है संभाल सकते हैं, मतलब प्रोफेशनली दे सकते हैं किसी को संभालने के लिए, मात्र 500 रुपए। करेक्ट, इससे बढ़िया चीज क्या है आपके पास? यस, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक हो है। आप। तो एक तो ये हो गया सर। दूसरी चीज, अभी प्रोसेस ऑफ क्लाइंट को कैसे लेते हैं, ऑनबोर्ड कैसे करते हैं, हमारा सबसे स्टैंडर्ड सबसे पहला तरीका यही है सर। वी टॉक टू द क्लाइंट, we understand the aspiration of the client, we understand the goals of the client, and also means to achieve it. भाई आज मेरा सपना है कि मेरे पास जेट प्लेन हो, ठीक है?
बोलने में कुछ नहीं जाता, बट मेरे मीन्स क्या है उसको अचीव करने के लिए। तो हम्म वो सबसे पहली बात जो है, आज आपका जो निवेशक है उसके साथ उसको भी समझाना आपका ही फर्ज बनता है कि रियलिटी क्या है, उस रियलिटी में आपका क्या एस्पिरेशंस है और क्या ही आपके मीन्स है, हम्म उस चीज को अचीव करने के लिए आपको गोल डिसाइड करना है। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारी। तो इसके लिए हम जो है उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, उसका टॉलरेंस लेवल, कि मार्केट देखिए, मार्केट जो है वो हमारे वो ईसीजी की तरह है, ऊपर नीचे चलती रहेगी तभी मार्केट चल रही है, राइट। लेकिन उस हिसाब में आपका क्या, मतलब कस्टमर का जो निवेशक है उसका रिस्क एपिटाइट क्या है, टॉलरेंस लेवल क्या है, और वो अपनी जिंदगी के किस स्टेज पे खड़ा है। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एक एक आदमी जो अपनी नौकरी शुरू कर रहा है, जिंदगी शुरू कर रहा है 22-25 साल से, हम्म, उसकी जो रिस्क एपिटाइट होगी वो अलग होगी। जो बिल्कुल मिड लाइफ में होगा 40-45 साल 50 साल, उसकी अलग होगी। 60 साल के बाद डेफिनेटली अलग होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगेन, जो एक वर्ड है पर्सनल फाइनेंस, हम्म मैं हमेशा कोट करता हूँ, पर्सनल फाइनेंस इज डेफिनेटली पर्सनल। हम्म तो एक 70 साल का आदमी भी इक्विटी की तरफ रुझान होगा, उसका एसेट्स इतने होंगे कि वो लगा सकता है, हम्म, और एक 25 साल के आदमी की इतनी लाइबिलिटीज होंगी कि वो इक्विटी की तरफ नहीं जा सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो इसके लिए आदमी की लाइफ स्टेज समझना, उसकी लाइबिलिटीज समझना, उसके एस्पिरेशंस समझना, और वो क्या इस वक्त क्या उसके मीन्स है इनकम के, और उसकी जो कमाई है हम्म, वो उसकी फैमिली के ओवरऑल कैश फ्लो में क्या मायने रखती राइट, राइट। वेरी ट्रू, है, ये वेरी। सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसका रिस्क टॉलरेंस क्या हो गया। हम्म अगेन, मैं हर एक को ये नहीं बोलता पूरा पैसा आप निवेश करो, हम्म डोंट लिव पुअर एंड डाई रिच। हम्म आप अपने एस्पिरेशंस रखो, आपको क्या करना है जिंदगी में वो भी जरूरी है। तो मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स रखो, और उसके बाद ही आप निवेश भी कर सकते। श्योर। तो एक प्रॉपर इंडक्शन प्लान है, रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द लाइफ स्टेज ऑफ द क्लाइंट, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप म्यूचुअल फंड तकरीबन, अगर मैं बोलूं कि कोई क्लाइंट अगर आपके पास 100 रुपीज लेके आए तो तकरीबन कितना आप उसको म्यूचुअल फंड में निवेश करवाते हैं? अगेन, अगर इसमें एक एजम्पशन लिया जाए कि एक आदमी जो रिस्क टेकिंग है, हम्म हम उसको लेते हैं, हम्म हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, 25 साल का अगर वो इंसान है, हम्म, निवेशक है, तो हम उसको करीब करीब 70 से 80% इक्विटी में डालो बोलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म हो। राइट, राइट। और 5 से 10% एक इमरजेंसी फंड को क्रिएट किया जाए, ताकि हम्म, उसको कभी भी कोई चीज की जरूरत हो वो पैसा उसके लिए अवेलेबल हो। बिल्कुल सही। और 15 से 20% मीडियम टर्म, कि आज उसको वेकेशन जाना है 2 महीने 2 साल हम्म बाद 3 साल बाद, उसको एक नया आईफोन खरीदना है, ठीक है, एक गाड़ी के लिए ईएमआई डालनी है, सॉरी डाउन पेमेंट डालनी है, तो उस हिसाब से करीब करीब 70 1% हम इक्विटी में डलवाते हैं। जरूर। और उसके अलावा अगर कोई मीडियम मिड लाइफ में है, तो उसका 50 से 60% इक्विटी में डलाते हैं, प्लस फिक्स्ड प्रोडक्ट में। क्योंकि हम्म आपको एक, जैसे आपका स्टेज बढ़ रहा है आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। हम्म, टिपिकली एक 40-45 साल के आदमी का बच्चा जो है 8-10 साल 12 साल का, उसका चिल्ड्रन होंगे, उनकी वाइफ यस। होंगी, हम्म, राइट। तो उसकी जो एक्सपेंसेस है, उसकी लाइबिलिटीज है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। हाउसिंग लोन हो सकता है। हाउसिंग लोन हो सकता है, एस्पिरेशन हम्म से हाउसिंग लोन हो सकता है, परिवार बढ़ रहा है तो गाड़ी खरीदेगा वो, हम्म ठीक है। आज अगर एक मियाँ बीवी, अगर एक समझिए एक इंडियन वेकेशन पे जाते हैं, लाख रुपए खर्चा होता है, तो सेम वही वेकेशन अगर दो बच्चों के साथ जाते हैं तो वो खर्चा 1.5 लाख रुपए हो गया, ठीक एग्जैक्टली। है। तो आपकी इनकम भी बढ़ रही है लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो वो हम्म प्रोपोर्शन देखना बहुत जरूरी है। तो बस 50 से 60%, क्योंकि आपका जो रिटर्न है निवेश पे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपकी। हम्म आज एक बैंक फिक्स डिपॉजिट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन, हम्म, लॉन्ग टर्म में ये दोनों चीज को बीट करेगा, तभी आपका निवेश सही मायने में सक्रिय है। श्योर। वंडरफुल। हम ये प्रॉमिस, हम ये बताते नहीं क्लाइंट को कि भाई पिछले 5 साल में हम्म भाई 20% आया 25% आया, नहीं सर। आपको सिर्फ एक ही रखना है कि आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, प्लस आपका जो आज इन्फ्लेशन है, उससे आपका जो निवेश है उसको, उससे ऊपर का आपको रिटर्न बनना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो बिल्कुल ठीक। आज की डेट में भी अगर मैं बोलूं 12-13%
5% अगर आपका निवेश दे रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 10 years, बहुत अच्छा निवेश है। साढ़े एब्सोल्युटली। 5 6 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। हम्म। सबसे बड़ी बात, आपका पैसा काम कर रहा है, आपने निवेश किया, आप बिल्कुल। बैठ गए। ठीक है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही, अपनी एक्टिव बिल्कुल सही। इनकम पे कंसंट्रेट कीजिए। बिल्कुल। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आपको म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है, जिस तरह से हमारा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, फ्यूचर क्या लगता है आपको बेसिकली उपेंद्र, एंड व्हाट डू यू बिलीव ऑन द एसआईपी स्टोरी एज वेल? व्हाट्स योर थॉट सर ऑन दैट? देखिए, एसआईपी तो एक रामबाण है हमारे लिए। हम्म। That's one of the best things which our industry has and which everyone should actually, हम्म। start do using it by investing small money. ठीक है, हम्म। सबको मालूम है आज कि क्या बोलते हैं, एसआईपी डालने से छोटा छोटा निवेश करो, रुपये हम्म। एवरेजिंग, ये सब है। सबसे बड़ी बात है, आप जब धीरे धीरे पैसा डालते हो और वो जब 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में बड़ा होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग उस पर लगता है। हम्म। दैट इज द रियल वैल्यू। करेक्ट। सो एसआईपी से अच्छा कुछ नहीं है। और म्यूचुअल फंड, अगर मैं सही बात बताऊं तो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे बड़ा बून है। हम्म। ठीक है, आपको आपका रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आज फंड्स अवेलेबल हैं, और एक नहीं, हजारों फंड है, सौ यस। फंड है, जिसमें आप खुद रिसर्च करके डाल सकते हो कि आपने क्या करना है, आपका एक्चुअल गोल क्या है। आपको लार्ज कैप में अगर निवेश करना है, थोड़ा सा मतलब रिस्क भी लेना है बट कंजर्वेटिव वे में लेना है, मिड कैप में लेना है, स्मॉल कैप में लेना है, आपको क्या लेना है, आपके पास वो ऑप्शंस हैं हम्म। जो आज से 20 25 30 साल पहले हमारे जो प्रीवियस जनरेशन थी उसके पास नहीं था। एक फिक्स्ड हम्म। डिपॉजिट था, रिकरिंग डिपॉजिट था, या हम्म। शेयर मार्केट में डालते थे या बॉन्ड्स में डालते थे। आज हम्म। आपके पास यू हैव अ एरे ऑफ प्रोडक्ट्स वेयर यू कैन इन्वेस्ट। हम्म। हम्म। So mutual funds give you that. Now coming down to the industry, how it is growing, I don't have to say that. We are actually on a rocket. हम्म। म्यूचुअल फंड्स जो है, म्यूचुअल फंड्स जो इस वक्त आज जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, वी आर हम्म। ऑलरेडी सिटिंग ऑन मोर देन 70 बिलियन। और यहां से मुझे लगता है दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग सर। हम्म। हम्म। अगर कुछ डेटा पॉइंट दूं तो मैं आज जिस दूसरी देशों में अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो इट इज मोर देन 130 100% के ऊपर। यूएस का जो जीडीपी टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है दैट इज 131%। आई थिंक इंडिया इज सिटिंग एट ओनली सम 13%। हम्म। सो इतना ज्यादा हमारे पास स्कोप है। यस। भारत देश हमारा जो है, आज हम यूपीआई में लीडर्स हैं। हम्म। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी में लीडर्स हैं, हमारे पास कंजम्पशन इकोनॉमी है, डेमोग्राफिक्स है, अर्निंग कैपेसिटी है। राइट? तो अगर आज हम एक पर कैपिटा इनकम जो $2500 की आई है, यहां से अगर आप पुराने मतलब बैक देखें, जिस भी देश का पर कैपिटा इनकम एक $2500 के आसपास आई है, उसके बाद जो फिलिप हुआ है दैट हम्म। इज 3x 5x। हम्म। आई वुड से वी विल लुक एट 10x इन डेज टू कम। That's true. That's true. So yes, mutual funds are going to be there. And one more data point, we are the percentage of population which is investing in mutual funds today is less than 10% of our population. Hmm. So there is a lot of things, there is a lot of market penetration which is to be done. तो बहुत बहुत मार्केट है। और आने वाले दिनों में सर, अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं तो फ्रॉम सेविंग्स इकोनॉमी इंडिया विल बी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी। दिस इज व्हाट Correct. आई बिलीव इन। And that's a very important change needed. Yes. So yes, the economy is going to grow. And if you see, जो 10 साल में हमारी ग्रोथ हुई थी पिछले, अगर हम डिकेड की बात करें, कि अभी हम 2025 में बैठे हैं, 2000 से 2015 तक जो हमने ग्रोथ ली है, 2015 से 2025 तक उसकी डबल ग्रोथ ले ली है, 3 गुना Hmm. ग्रोथ ली है। Hmm. विच शोज कि people have believe in this product, people know this product, अल्टीमेटली लिटरेसी भी बढ़ रही है, Hmm. लोगों को समझ में आ रहा है। इनफैक्ट टायर 1 से टायर 2 टायर 3 सिटीज से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि Hmm. लोगों को वो ज्ञान मिल रहा है, लोगों को समझ आ रहा है कि ये म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट वेयर आई कैन Absolutely. इन्वेस्ट one as low as 500 rupees in an SIP mode, as we rightly you also mentioned and we were discussing. So that's a boom. तो आज आदमी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। Hmm.
सो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अच्छा, पहले ये होता था, आज से 15-20 साल पहले, अगर आपको कोई शेयर का प्राइस देखना है, एनएवी देखना है, तो न्यूज़पेपर के पीछे छोटा सा आता था, वैसे आंख लगा के देखते थे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आज स्मार्टफोन की दुनिया में सर, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल जस्ट ऑन द क्लिक ऑफ अ एवरीथिंग बटन। इज डिजिटली, सब कुछ अवेलेबल है। तो डिजिटाइजेशन इज अनदर बून विच इज आल्सो हेल्पिंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टू ग्रो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज कोई यूएस में बैठा बंदा प्रॉपर केवाईसी करने के बाद वो वहां बैठा बैठा खरीद सकता है इंडिया। खरीद सकता है, बिल्कुल। इट इज बिकम सो सिंपल। ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ बंदा इंडिया की मार्केट समय खत्म होने के बाद, अगर जो टाइम डिफरेंस है, वो बैठ के अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकता है। हम्म। तो ये पहले कहाँ था? करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। So the growth has just started. यस, To वेरी ट्रू। me, the growth has just started, and this is just the beginning. दिस इज जस्ट द बिगनिंग, दिस इज This is जस्ट। just the beginning, and from here in next 10 years, if we are 10-20 years, 20 साल, 2047, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू बी left out from any world markets. We will be एब्सोल्युटली, ahead of many world markets, and definitely we will be in the top 3 economies in the world. एब्सोल्युटली, दैट इज गोना हैपन वेरी सून एनीवे। That is going to happen. तो जब इकोनॉमी बढ़ेगी, जब लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा मार्केट में आएगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और बिल्कुल सही। इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका जो आपके हाथ में है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, आपके हाथ में है, आपको जब चाहिए आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हो, जो भी कर सकते हो। आई थिंक डिजिटाइजेशन, सो दीज ऑल कॉम्बिनेशन, दीज ऑल फैक्टर्स, you will see mutual funds to the next level very, very soon. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। And तो आप also the markets are maturing. Markets मार्केट्स are में, maturing. लोगों एब्सोल्युटली, को फाइनेंशियल लिटरेसी के कारण मार्केट्स आर आल्सो मैच्योरिंग। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो जब भी आप कौन से रिसर्च टूल्स आप यूटिलाइज करते हैं बिफोर आप यू एनालाइज कि अच्छा ये स्कीम अच्छी है, वो स्कीम अच्छी है? एंड आर यू आल्सो डूइंग एनी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स? हाउ डू यू मार्केट फिनॉप्टिक? तो पहली बात, रिसर्च की जहां तक बात आती है, हम दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च हमारी टीम करती है। हम खुद बैठते हैं उसके लिए, हम्म पूरी टीम भी करती है। तो जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स में, जैसे आपके अल्फाज हो गए, हाउ द फंड इज परफॉर्मिंग, द हम्म रोलिंग रिटर्न्स, द वोलेटिलिटी इन द मार्केट, the beta. So there are many tools which are available today in the Indian market. One, of course, by Advisor Coach also. So पूरा डेटा तो है, तो उसके बेसिस पे। सेकंड इज क्वालिटेटिव। हम्म क्वालिटेटिव का मतलब ये हो गया कि हम जो हैं, वी ऑल्सो लुक एट जो फंड हाउस का परफॉर्मेंस कैसा है, उस फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस कैसा है, हाउ हम्म दे हैव बीन डिलीवरिंग, व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ द फंड हाउस। सो बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च करने के बाद ही हम कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोचते हैं। श्योर। दूसरी बात, हाउ डू वी मार्केट फिनॉप्टिक? वी आर नॉट सेल्स पीपल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। हम्म सो मार्केटिंग का काम ही नहीं आता हमारे। हम्म हमारा पूरा बिजनेस जो है रेफरल बेस्ड है, बिकॉज वी क्रिएट ट्रस्ट विद द क्लाइंट। और जो हमें रेफरल आता है, ओनली विद दैट वी डू। सो वी ट्रू। आर नॉट सेल्स पीपल। आई ऑलवेज टेल वी आर ओनली सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, वी आर नॉट सेल्स पीपल। हम्म। Most of the industry where they go wrong is they try to sell a product. We don't try to sell a product. We हम्म are a solution oriented company, not a sale oriented company. हम्म। So इसमें जो है हमारे को referrals, and the best is word of mouth. करेक्ट। So this is where we get investments from our clients, and we get new clients, we acquire new clients. Second, how do we retain them? That's most important. One is we send them monthly their portfolios. हम्म Every 3 months we review with the client कि हम्म portfolio कैसे चल रहा है, कोई changes करने हैं, नहीं करने हैं. So based on all these factors, we have created trust over with our clients for more than 1.5 decade, and that's actually giving us more and more business. Wonderful. So, if I were to just say, what is that one differentiating factor which you have from others as Finoptic Capital Services? Sir, our philosophy, first and foremost, our philosophy. At Hmm. Finoptech, we are not salespeople. Hmm. We are solution oriented. Hmm. So we empathize with the client first, उसकी प्रॉब्लम समझेंगे, उसके एस्पिरेशन समझेंगे, और फिर ही कुछ उसके साथ काम करेंगे। सेकंड, प्रोसेस। प्रोसेस इज वेरी वेरी क्लियर। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का, अगर पहले, सबसे पहले तो क्लाइंट का आपका रिस्क प्रोफाइलिंग होगा।
रिस्क प्रोफाइलिंग के बाद उससे डिस्कशन होगा कि सर हमारे हिसाब से ये है, अब आप बताइए. सो एवरी स्टेज वी इन्वॉल्व द क्लाइंट एंड देयर हम्म फैमिलीज. हम्म So that way the process is very strong. Third most very important, personalization. As I was हम्म telling you, एक 25 साल का आदमी अगर आप एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से जाएंगे 100 माइनस 25 75 इक्विटी में डाल दो, नहीं. हम्म It पर्सनल doesn't फाइनेंस operate. इज, सॉरी, It is very different from that. करेक्ट. सो पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल. Hmm. सो कस्टमाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, हर no one क्लाइंट jacket को, fits all. No one jacket या, fits. Hmm. सो वी आर वेरी क्लियर कि हमारा जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है या Hmm. हमें रेफर होता है, वी Hmm. हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हिज नीड्स, वांट्स, डिजायर्स, और कहाँ उसको फिट किया जाए. बिकॉज हम, जैसे मैं बोलता हूँ सर, हम सेल्स में नहीं है, हम Hmm. सॉल्यूशन में हैं. एंड एट द Hmm. एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू ओनली टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टर बिहेवियर. Hmm. Hmm. If we manage their behavior, investment is done. We just have to अगेन एंड अगेन टेल देम दैट बस मार्केट वोलेटाइल है, ऊपर नीचे है, रहेगा. सो आप जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, बी डिसिप्लिन्ड इन योर इन्वेस्टमेंट्स. गोल कैन बी अचीव्ड, Goal can be गोल विल achieved. बी अचीव्ड. एक सवाल मेरे अ, आता है माइंड में कि उपिंदर अपना इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करते हैं? ये तो आप सीक्रेट पूछ रहे हैं, ये तो. हाँ, रेसिपी बताइए. Where do you सर invest मेरे your long-term मेरे investments? मेरे मेरे पूरे इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में. हम्म आई एम अ होल एंड होल म्यूचुअल फंड. हम्म मेरा जो सबसे पहला एसआईपी शुरू हुआ था 2000 रुपए से 2005 में, हम्म वो आज भी चल रहा आज भी चल रहा है. है, हम्म आज भी चल रहा है. हम्म सो आज 20 साल हो गए, और 20 साल में द ग्रोथ हैज बीन फिनोमिनल. Absolutely, undoubtedly. राइट. और अगर अगर मैं एवरेज की बात करूं तो मेरा 2000 में जो मैंने पैसा डाला था, आफ्टर ऑल दीज टर्मोइल्स, ठीक है, आफ्टर ऑल दीज टर्मोइल्स, बबल ऑफ, मतलब ये 2008 का फॉल, 2015-16 का सब होने के बाद, my fund has given more than 16% annualized return. और क्या चाहिए मुझे बताइए. Nothing. The only thing which you did was ensured कि हर महीने पैसे जाते रहे. बस. हर महीने पैसे जा रहे हैं, बस. हर महीने पैसे जाते हैं. और मार्केट, मैं आपको आपको और एक बात बताता हूं, मैं अपना पोर्टफोलियो 6 महीने से पहले देखता नहीं. हम्म हम्म मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो, हम्म मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जो हम बता रहे हैं, हम्म जो हम लोगों को बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म रहो, अगर मैं खुद भी नहीं करा तो हाउ विल आई कन्विंस द क्लाइंट? बिकॉज I find myself am not convinced with what I'm doing. How can I convince you? यस एब्सोल्युटली. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. So I have all my investments linked to a goal. मैं पूरी खुद हम्म की जो करता हूँ गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता हूँ. हम्म So that is what I do, and in fact I have seen the results are really really phenomenal. phenomenal. Absolutely. So Upinder, through this partner connect, आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे to investors about mutual fund industry? What one message आप देना चाहेंगे? So to all the investors, मैं एक ही बात बोलूंगा. I would like to say one thing. Mutual fund industry is the best investment class, best investment asset class we Indians have. Across the globe they are, but in India, because we are at the right time, right place with right products. इससे ज्यादा और कुछ अच्छा हो नहीं सकता. So Wonderful. mutual fund is one of the greatest tools where you can, create a corpus where you can make your money grow. As hard as you work for your money, the managers are working for you. Yes. So True. mutual fund is a fantastic product where you can, create a legacy, not just for yourself, but also for your generations. I'll give you one small example, sir. If someone invests, I mean, लोग बोलते हैं ना 100 करोड़ रुपए कमाना बहुत मुश्किल है, राइट? नाउ आई टेल यू सर, 100 करोड़ रुपया कमाना कोई मुश्किल नहीं. डज दैट साउंड ओके, गुड? I know. I would like to hear more about it.
Sir, if someone, how legacy can be created, and Hmm. many families, many family offices, and many big families of India today have, not India, across the globe has done it. अगर आप 10,000 रुपए, ठीक है सर, आई एम टॉकिंग 10,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो हर महीने 60 साल के लिए, 60 years, Mm-hmm. at a return of 12.5%, Hmm. 60 साल में what you invest is 72 lakh rupees. Mm-hmm. It will be, can you just guess the number, sir? वो पैसा कितना होगा? 12-12.5%. Let us be very, very honest. What is Market it has coming? given, Is it coming close to about 90, 100 crores? it is 101 crores. Oh, wow. Hmm. Now, I always tell all my clients, why are you looking at कि आप अपने रिटायरमेंट की बात क्यों कर रहे हो? Hmm. Hmm. आप अपने रिटायरमेंट की अपनी अपनी बात क्यों कर रहे हो? Why are you not thinking एक लेगेसी बनाने? Hmm. Just imagine a person who has just started, आज की डेट में जो सैलरीज हैं, once a graduate is coming out of the college or even an MBA, average salary is around 40-50,000 rupees. Hmm. 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 अगर आप पहले दिन से सोच लो कि इसका 20% मेरे को इन्वेस्ट करना ही करना है, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना ही करना है, Hmm. right? By the time you are 85 and your kid is say 40-45, you have 100 crore corpus. Hmm. Correct. Wow. Wow. तो मतलब इन द सेंस लाइक डिसिप्लिन तरीके से करते जाइए निवेश एंड उसको छेड़खानी मत करिए बिल्कुल. एंड चलने दीजिए. एक्सेलेंट. यस, एब्सोल्युटली. Wonderful, wonderful. So, well, for our viewers, this is Mr. Upinder Jain from Finoptic Capital Services, Hyderabad. उपिंदर, बहुत ही मजा आया आपसे आज पार्टनर कनेक्ट में कॉन्वर्सेशन करके. Was really wonderful. Brilliant thoughts, brilliant achievement, and I'm sure brilliant plans ahead as well. So thank you so much for taking out time and joining us. Thank you, Suren. Thank you for this wonderful opportunity and your valuable time. Thank you. Thank you. And Jai Hind. Jai Hind. Thank you. Thank you.